Hello everyone, good morning. Welcome in the topic application of trigonometry. Many students think that the trigonometry is that difficult, then the application of trigonometry would be really very tough and difficult than these. But believe me, application of trigonometry is just not even a 10% of your trigonometry. I mean to say about difficulty level as well as the number of questions. So it's a very easy, very simple and direct topic. There are few things, of course, can be difficult, but those are very rare, very less in number. So let's begin. Before we start the topic, before we start the actual question, I have some requirements. The previous knowledge one should have, so that previous knowledge will complete first of all, and you make sure that all these things you must know. So what else you should know? Three formulae. One is sine theta, which is opposite side upon hypotenuse. Cos theta, which is adjacent side upon hypotenuse, and tan theta, which you may need maximum time, that is opposite side upon adjacent side. This is for so many time you need it. Of course, these two also you require. And second thing is few standard angles and its values. So what are those? One is 30 degree, 45 degree, and 60 degree. That's it. And that too of only sine, cos, and tan. So sine 30 is 1 by 2, sine 45 is 1 upon root 2, and sine 60 is root 3 by 2. You must remember it. Root 3 by 2, 1 upon root 2, and 1 by 2. So you must be remembering that these two values are same. Only you have to remember these four values. Then we have tan of 31 upon root 3, as these two are equal to it is 1 and root 3. ये भी आपको easily याद रह जाएगा. Maximum time you need tan theta. मतलब 80% of the time you will be dependent on only these two things of tan theta. बाकी 20% on these. Okay, is that fine? So make sure that you list out either all these things or remember this at any cost. This at least you must know definitions of sine, cos and tan, and these are the simple values you can easily remember. ठीक है, that's it. तो मैं इसको erase कर देता हूँ. You can, if you want, you can pause and you can go for noting down these things on the very first page of your application of trigonometry. And now we will go for the next one, that is solving the questions. So before I begin the actual questions, I have given or I have created one simple strategic worksheet where it has got some diagrams and you are expected to find the value of x. Let me tell you, in case if you complete this worksheet properly with no difficulties and no hints, then the topic is done. Yes, the topic will be done. So only based on these few questions what are given here, only based on these few questions you can easily, let me tell you, finish it off the topic. ओके, तो वन बाय वन हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. ठीक है, आपको भी आज के आज ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. इफ यू डू दिस देन योर टॉपिक इज ऑलमोस्ट डन. लेट मी टेल यू. चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल विल वर्क ऑन द फर्स्ट फिगर ABC and you are supposed to find out x value. BC is given 20. So what you are supposed to do, let me give the idea. Angle is given and two sides out of that one is given. You have to find the third one. That means this is the question of trigonometry one can easily predict. If angle is given, it's a question of trigonometry. ठीक है, angle is given and you are expected to find the side. It's a question of trigonometry because trigonometry only can give you the relation between angle and side, right? So yes, it's a question of trigonometry. So we'll go for it. First of all, let us understand that x is the opposite side of 60 degree and 20 is the adjacent side of 60 degree. So which ratio you have in terms of opposite side and adjacent side? Yes, it is tan. So tan of 60 degree is equals to AB upon BC. Tan 60 is root 3, I know. AB is not given x and BC is 20. And the answer is x is equals to 20 root 3. Answer done. ठीक है, तो this question answer is done. Second one. Similarly, same process I will follow. In front of the 30 degree, PQ is opposite, which is 215, and PR is x, which is hypotenuse. So opposite and hypotenuse, I have sine of 30.
which is PQ upon PR. Sin 30, I know that it is 1 upon 2, PQ 215 upon PR. I can shift the PR the other side. I get PR is equals to 215 into 2. It is 5 to the 10, 3 and 2 to the 4, 430. The answer is there for you. That's it. Don't you think it's so simple? है ना? And the last one of the series. So we have x here, opposite side as 45 and hypotenuse as 30 root 3. So of course it is sine of x. Sine of x is equals to PQ upon PR, which can be equal to 45 upon 30 root 3. I know that we can simplify it like 15 2s are 15 3s are. So it is 3 upon 2 root 3. If I multiply by root 3, I get 3 root 3 upon 2 root 3. 2 into 3, sorry. 2 into 3. 3 get cancelled, it is root 3 by 2. So sine of x is equals to root 3 by 2. Which value of sine is root 3 by 2? It is sine of 60. So x is going to be equal to 60 degree. That's it. I hope you are clear for this. तो इतना समझ में आ गया, मतलब इसके आगे भी समझ में जल्दी से आ जाएगा. डोंट वरी, हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाफट से. नेक्स्ट फ्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं. तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड है. ठीक है, इसको नेम नहीं किया हुआ, नंबर नहीं किया हुआ, लेकिन आप लोग अंडरस्टैंड कर दो ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड है ऐसे. ठीक है, अभी इसमें कैसा है, अनलाइक टू आवर प्रीवियस क्वेश्चन, इसमें दो ट्रायंगल्स है. ओके, 2 ट्रायंगल्स है या फिर थोड़ा सा क्रिटिकल है, तो हम लोग उसको, उस क्रिटिकलनेस को हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं. तो अंडरस्टैंड करते हैं फटाफट से, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम. तो हमें करना क्या है, टोटल एक्स फाइंड करना है जो LO है. ठीक है, तो पहले हम लोग MN की वैल्यू फाइंड करते हैं. व्हाट विल बी MN, चेक कर लो ठीक से, देखो मुझे बताओ MN क्या होगा. यस एग्जैक्टली इट्स 140 होगा, बिकॉज ये एक रेक्टेंगल है. ठीक है, और ये इसको एक्सप्लेन वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है. अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल भी आप लोग बोल सकते हो, बट ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती इस क्वेश्चन में, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है. तो MN पता है आपको. ठीक है, MN पता है, ये एंगल M is 30 है, और मुझे LO फाइंड करना है. LO तो डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते हम लोग, LN फाइंड कर सकते हैं. तो बेसिकली मुझे LN फाइंड करने के लिए कौन सा रेशो मिल जाएगा, tan ऑफ 30, बराबर है ना. tan ऑफ 30 इज इक्वल्स टू LN अपॉन MN. ऐसे क्यों किया, आपको इन शॉर्ट समझ में आ जाएगा, इन शॉर्ट टाइम समझ में आ गया. 1 अपॉन रूट 3 हो जाएगा. LN हमें फाइंड करना है. MN कितना दिया है, MN तो है 140, तो इट विल बी 140 इज इक्वल्स टू LN, बराबर है. इसको थोड़ा सा हम लोग रैशनलाइज करते हैं, तो 140 रूट 3 अपॉन रूट 3 इज इक्वल्स टू LN. बट हमें LN नहीं चाहिए, ये तो क्लियर सी बात है कि मुझे LN नहीं चाहिए. अरे रे हमने क्यों मैं गलती कर रहा हूँ, ये ऐसे सारी सिंपल सी गलतियाँ कर रहा हूँ मैं. ठीक है, हमें LN तो नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, LO चाहिए, विच विल बी x. सो LO x इज इक्वल्स टू कितना आएगा, LN प्लस NO. अभी LN कितना है, 140 रूट 3 अपॉन 3. LO कितना है, यस वेरी क्लियर, 60 NO है ना, क्योंकि MP is 60 तो ये NO भी 60 हो जाएगा. ये आपको समझ में आना चाहिए, बस दैट्स इट. ठीक है, तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं. इट विल बी 140 रूट 3 प्लस 6 3 18 180 अपॉन 3, एंड दिस इज द आंसर. नो चेंज, मतलब नो मोर सिंप्लीफिकेशन इज रिक्वायर्ड हियर. ठीक है, समझ में आ गया सबको, इज दिस क्लियर. बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल है, बिलीव मी, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेकंड है, सेकंड में देख लो ठीक से, अंडरस्टैंड करो. हमें एक्स फाइंड करना है जो SR है. देखो SR जो होगा वो ऐसे होगा, देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड, QR माइनस QS होगा. अभी मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, QR माइनस QX. देखो इन द ट्रिग्नोमेट्री यू कैन फाइंड द साइड ऑफ ओनली एंड ओनली राइट एंगल ट्राइंगल. ये याद रखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक से सुनो, गौर कीजिएगा, तवज्जो दीजिएगा इधर, दैट मीन्स फोकस. तो हियर you can find out only the side of right angle triangle. लेकिन x is not a side of right angle triangle as we see in the second question. डायग्राम में देखो x is not a side of right angle triangle. तो अगर साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल है तो ही फाइंड कर सकते हैं, तो ये तो x तो नहीं फाइंड कर सकते यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री. तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, x को हम लोग कुछ इस प्रकार देख रहे हैं कि वो एक राइट एंगल ट्राइंगल के साइड का सब्ट्रैक्शन हो. देखो QR है राइट एंगल ट्राइंगल का साइड, यस इट इज़. QS ये भी है,
तो इजंट इट इन दिस मैनर यू कैन कंप्लीट दिस क्वेश्चन, राइट? बराबर है ना? तो ये बेसिकली मुझे फाइंड करना है क्यू आर एंड क्यू एस। तो पहले क्यू आर की तरफ देखते हैं। क्यू आर इज अ लार्जर ट्राइंगल पी क्यू आर। इन ट्राइंगल पी क्यू आर देख लो, tan ऑफ 30, समझने की कोशिश करो, tan ऑफ 30 पी क्यू, गिवन वैल्यू जो है उसको देना पड़ेगा ना, पी क्यू अपॉन क्यू आर, बराबर है। क्यू आर बिकॉज मुझे चाहिए था, पी क्यू बिकॉज गिवन है। tan 30 कितना है, 1/√3। पी क्यू कितना है, 50। क्यू आर कितना है पता नहीं, तो व्हाट इज क्यू आर इज इक्वल्स टू 50√3। कोई सिंप्लीफिकेशन की जरूरत नहीं है, क्यू आर मिल गया। अभी क्यू एस फाइंड करते हैं। इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, पी क्यू एस में tan ऑफ है ना, tan ऑफ क्या होगा, 60 होगा। tan ऑफ 60 क्या होगा, पी क्यू अपॉन क्यू एस। अभी आप बोलोगे tan क्यों लिया, समझ में आ गया होगा आपको अभी तक। क्यू एस फाइंड करना है, पी क्यू गिवन है ना? तो ये क्लियर सी बात है कि ये हो गया √3, पी क्यू तो हमें 50 दिया, क्यू एस तो व्हाट इज क्यू एस इज इक्वल्स टू 50 अपॉन √3, बराबर। ठीक से, ये ठीक से करना पड़ेगा, इंटू √3। सो व्हाट वी हैव, क्यू एस इज इक्वल्स टू 50√3 अपॉन 3, एंड दैट्स व्हाट योर आंसर फॉर क्यू एस इज। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। लेकिन हमें फाइंड क्या करना था, बेसिकली एक्स फाइंड करना था। तो व्हाट इज एक्स इज इक्वल्स टू क्यू आर माइनस क्यू एस। बहुत सिंपल है, 50√3 माइनस 50√3 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 150, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो √3, ठीक है ना, माइनस 50√3 अपॉन 3, 100√3 अपॉन 3। ये आ गया आपका आंसर फॉर एक्स। देखो कितना इजी है, बहुत इजी है, बहुत बहुत ज़्यादा सिंपल है। ओके, बस इतना, ये क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे ना तो ऑलमोस्ट वी आर डन विथ एवरीथिंग, ठीक है ना। तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट में देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है थर्ड वाला, ये बहुत बार आने वाला है, आपको बहुत बार ट्रबल करने वाला है। तो इसको एक ही बार में समझ लो, इसको एक बार में समझ लोगे ना तो इसके बाद ज़िंदगी में ये क्वेश्चन आपको ट्रबल नहीं करेगा। उसको काट के फेंक दो, ठीक है। ये है 45, ये है एक्स, ये 60 दिया है और ये 30 दिया है। तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके अभी आपको दिखाता हूँ। आपको फाइंड क्या करना है वो तो आपको समझ में आ गया, एक्स फाइंड करना है, मतलब ए बी फाइंड करना है। अभी ठीक से देखो, जो गिवन वैल्यू है जो अब तक थी वो तो एक साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल थी। इसमें और उसमें डिफरेंस देखो क्या है। देखो अभी तक जो क्वेश्चंस थे उसमें देखो, यहाँ पे 20 दिया है पहले वाले क्वेश्चन में जो साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल थी। यहाँ पे पी क्यू दिया है, साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल थी। यहाँ पे दोनों साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे देखो 140 साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे देखो पी क्यू 50 साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल है। लेकिन इस क्वेश्चन में ठीक से देख लो, 45 इज नॉट अ साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो समझ लो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको एक वे से सॉल्व करना है, और वो वे मैं आपको समझा रहा हूँ। ओके, वो वे है आपको एक अनदर वेरिएबल को कंसिडर करना पड़ेगा, कोई और एक वेरिएबल चाहिए, ठीक है, सो दैट ये जो 45 है इसका कुछ यूज हो। क्योंकि राइट नाउ इस 45 का कोई भी यूज नहीं होगा इफ आई एम यूजिंग एनी ट्रिग्नोमेट्री इन एनी ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। ये जो 45 है ये यूजलेस होगा, क्योंकि ए बी डी में यूज करेंगे तो 45 नहीं आएगा, और ए बी सी में यूज करेंगे तो 45 आने का नाम ही नहीं लेगा। ये होता है कंफ्यूजन इस वाले क्वेश्चन में। तो इस वाले क्वेश्चन को कैसे करना है, तो हम लोग ऐसे साइड, जैसे कि बी सी को मैं एक वेरिएबल कंसिडर करता हूँ, लाइक वाई, कोई भी एक वेरिएबल, एक्स करो वाई करो चल जाएगा, किया। और अभी हम लोग टारगेट, हमारा टारगेट क्या है, एक्स फाइंड करना नहीं, हमारा टारगेट है वाई फाइंड करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार वाई मिल गया तो आपको एक्स मिल जाएगा, ठीक है। जो हमने वेरिएबल कंसिडर किया उसको फाइंड करने का आपका टारगेट है, उसके बाद एक्स का टारगेट है। चलो देखते हैं, चलो लेट्स स्टार्ट वर्किंग। कुछ नहीं करना, हमारे पास दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल में अपने अपने हिसाब से ट्रिग्नोमेट्री लगा दो। तो पहले वाला ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी वी हैव tan ऑफ 60 इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। अभी मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ, आपको समझ में आ जाना चाहिए, राइट। tan ऑफ 60 क्या है, मतलब क्या होता है, √3 एक्स अपॉन वाई। तो व्हाट विल बी एक्स इज इक्वल टू वाई √3। बहुत कॉमनली यूज मेथड है, प्लीज अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। y√3 आ गया, मतलब मैंने x को आइसोलेट किया। अभी दूसरे ट्रायंगल में देखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी, tan ऑफ 30 क्या होगा, tan ऑफ 30 x अपॉन y प्लस 45। व्हाट इज tan ऑफ 30, 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू x अपॉन y प्लस 45।
अभी एक्स को आइसोलेट करेंगे, जैसे इस क्वेश्चन में क्या था, एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 45 अपॉन रूट 3। ये बार बार हम लोग करने वाले हैं। और अभी देखो ये क्लियरली इट इज वेरी क्लियर हियर इन द क्वेश्चन दैट दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन शुड बी सेम, क्योंकि दोनों एक्स है। ये है मेरा टारगेट, मेरा बेसिक टारगेट ये है। समझ में आ गया आप लोगों को, है ना? आपको समझ में आ गया होगा अभी तक, ठीक है? अभी इक्वेट करना है, तो वाई रूट 3 इज इक्वल टू वाई प्लस 45 अपॉन रूट 3, बराबर है। रूट 3 को इधर शिफ्ट कर दो, तो 3y इज इक्वल टू वाई प्लस 45। देखो कितना इजीली आंसर आ गया। 2y इज इक्वल टू 45, y इज इक्वल टू 45 अपॉन 2 विच कैन बी इक्वल टू 2 टू ज़ा 4, 2 टू ज़ा 4.5, 22.5। एक बार आपको y आ गया, इसका मतलब x भी आ गया। देख लो इक्वेशन नंबर 1 को, तो देयरफॉर x विल बी इक्वल टू क्या होगा, 22.5 रूट 3। ये आ गया आपका आंसर फॉर x। देखो समझ में आ गया ना, इज दिस क्लियर? कुछ नहीं किया, हमने एक वेरिएबल कंसिडर किया। क्यों किया? देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब राइट एंगल ट्राइंगल की साइड न हो तो वेरिएबल कंसिडर करना पड़ता है। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो आपको ये ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ गया, ओके? लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल का कोई भी एक साइड मालूम है, बिल्कुल भी कुछ वेरिएबल की जरूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। ये मेरे 2 सेंटेंस प्रॉपरली याद रखो इस टॉपिक में। राइट एंगल ट्राइंगल की साइड दी है, नो वेरिएबल, डायरेक्टली सॉल्व करो। मे बी समवेयर यू हैव टू ऐड और सब्ट्रैक्ट टू गेट द फाइनल आंसर। लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल की साइड न हो, जैसे कि इन दिस क्वेश्चन इट इज, देन प्लीज यू हैव टू टेक अ वेरिएबल सो दैट यू कैन यूज दैट वैल्यू प्रॉपरली, ठीक है? ये कैसे करेंगे, कैसे होगा, ये धीरे धीरे आपको समझ में अभी आ जाएगा। यू डोंट हैव टू वरी। तो मैं इसको अभी इरेज कर देता हूँ, ये थोड़ा डिफिकल्ट था इसलिए हमने क्या किया था, उसको इलेबरेट किया था। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सा वाला क्वेश्चन किया हमने? ये वाला क्वेश्चन किया, यू गॉट इट ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट वन इज दिस वन। इसमें कोई वैल्यू दी हुई नहीं है, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको डायग्राम ड्रॉ करता हूँ और आपको मैं वैल्यू दे देता हूँ। ठीक है, ए 90 है, 90 है, तो ये क्लियर है। टी एस में वैल्यू देता हूँ, तो वैल्यू ऑफ टी एस इज 12। वैल्यू ऑफ टी एस इज 12 है। आपको फाइंड क्या करना है, एक्स। तो हम लोग फिर से ये सोचेंगे कि वैल्यू ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल कोई दी ही है क्या? दैट मीन्स द 12 व्हाट इज गिवन, इज इट अ राइट एंगल ट्राइंगल साइड? तो यस, ये पी टी एस का साइड है। तो एक्स फाइंड करने के लिए कोई भी दूसरे वेरिएबल की आपको सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लोग ट्रिग्नोमेट्री यूज करो, 2 ट्रायंगल में आपका एक्स आ जाएगा। कैसे आएगा एक्स? क्योंकि एक्स इज नॉट अ साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये तो क्लियर सी बात है कि जो एक्स मुझे फाइंड करना है वो तो साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो कैन आई डू दैट, एक्स इज इक्वल टू पी एस माइनस पी क्यू। तो ये पी एस फाइंड करो, पी क्यू फाइंड करो, एंड मेरा आंसर डन हो जाएगा। चलो लेट्स स्टार्ट वर्किंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पी एस फाइंड करते हैं बाई टेकिंग ट्राइंगल पी टी एस। इन ट्राइंगल पी टी एस, बराबर है ना? tan ऑफ 60, क्योंकि पी एस फाइंड करना है ना। tan ऑफ 60, मैंने बोला था ऑलरेडी कि tan ही ज़्यादा यूज होगा मैक्सिमम टाइम। tan ऑफ 60 इज इक्वल टू पी एस अपॉन टी एस। tan 60 क्या है, रूट 3। पी एस क्या है पता नहीं, टी एस क्या है 12, बराबर है 12 रूट 3 पी एस। तो मेरा पी एस तो आ गया। अभी मुझे क्या फाइंड करना है, पी क्यू। पी क्यू फाइंड करने के लिए आई हैव टू यूज इन ट्राइंगल पी क्यू आर। तो tan ऑफ क्या होगा, ये 45 होगा। tan ऑफ 45 इज पी क्यू अपॉन आर क्यू। tan ऑफ 45 1 होता है, पी क्यू पता नहीं, आर क्यू कितना होगा, यस 12, क्योंकि ये टी एस के साथ इक्वल होगा। तो 12 इज इक्वल्स टू पी क्यू। ये आ गया आपका दोनों आंसर। तो व्हाट इज एक्स इज इक्वल्स टू, एक्स इज इक्वल्स टू पी एस माइनस पी क्यू विच कैन बी इक्वल टू 12 रूट 3 माइनस 12। द आंसर इज 12 इंटू ब्रैकेट रूट 3 माइनस 1। और इसको कोई हेजिटेट करने की जरूरत नहीं, यही करेक्ट आंसर है। ओके, ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे जो आपको लगता है ऐसे कैसे आगे आंसर आ गया, लेकिन वही करेक्ट होता है, डोंट वरी, ठीक है? डन।
तो इसको हम लोग मिनिमाइज करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं एंड देन देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। ये भी थोड़ा सा कंफ्यूज करता है क्योंकि एंगल ऐसे मिक्स्ड है। तो मैं डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ राधा। ऐसे कुछ तो है, ये दिया हुआ है 30, ये दिया हुआ है 60, ये 1500√3, DEACB एक्स फाइंड करना है यहाँ पे। बाकी ये परपेंडिकुलर वगैरह तो दिया हुआ है ना। ओके, एक्स फाइंड करना है, मतलब CE इज ऑल्सो एक्स। इज इट अ पार्ट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल? देख लो ठीक से, नहीं है। तो x विल बी इक्वल टू, देखो, BE माइनस CE, ये तो क्लियर है। x इज इक्वल टू BE माइनस BC, सॉरी, BE माइनस BC, ये क्लियर है ना। BE माइनस BC, ओके। इसका मतलब क्या है? मुझे BE फाइंड करना पड़ेगा, BC फाइंड करना पड़ेगा और आंसर मिल जाएगा मुझे। बी के लिए हमें कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा? सोच लो। अभी तो आपने इतने सारे क्वेश्चन देखे हैं, तो अभी सोचो बी के लिए कौन सा ट्रायंगल लेंगे। यस, BD इन ट्रायंगल BDE। चलो, अभी BDA का एंगल कौन सा है? ठीक से देख लो ऑनेस्टली, BDA का एंगल कौन सा? 30 है। तो tan ऑफ 30 उसका अपोजिट अपना एडजेसेंट, अपोजिट क्या है? DE अपॉन एडजेसेंट क्या है? BE। हम लोग BE फाइंड करें तो BE होगा ना, tan 30 1/√3, नहीं सही है। DE क्या है? 1500√3। BE क्या है पता नहीं, BE को इधर शिफ्ट कर दिया, BE आ गया। ये क्या हो गया? 15 × 3 4500 बराबर। अभी BC फाइंड करते हैं। BC के लिए कौन सा ट्रायंगल होगा? इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। ABC में देखो एंगल दिया हुआ है, तो tan ऑफ 60। हमें क्या फाइंड करना है ये इंपॉर्टेंट है, तो वो बस आना चाहिए उसमें, AC अपॉन BC। लेकिन डू आई नो AC? यस, AC इज इटसेल्फ इज DE, बराबर है ना, इक्वल होता है ना रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स। तो ये होगा √3। AC जो है वो 1500√3 है। BC तो पता नहीं, BC को शिफ्ट कर दिया, BC इज इक्वल टू √3 गेट कैंसिल 1500। तो आई होप यू आर वेरी क्लियर। तो x इज इक्वल टू 4500 माइनस 1500 एंड आपका आंसर आ गया। दैट्स इट, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, लेट्स गो अहेड ना। बात समझ में आ रही होगी आपको, तो ये तो क्लियर सी बात है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत तगड़ा वाला क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये दो साइड्स ऐसे इक्वल करके दिया हुआ है, x दिया हुआ है, ये PQ है, ये T है, ये R है, ये S है, ये 90 है, ये 90 है, ये 60 है और ये 30 है। बाकी हाँ और एक दिया हुआ है, ये 100 है। देखो ये रहा आपका क्वेश्चन, मैंने आपको एक्सपेंड करना है, तो चलो देखते हैं कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं इसमें। तो जो सबसे पहला वाला क्वेश्चन जो आपको एक दूसरे से पूछना है या फिर खुद से पूछना है, इज दैट द गिवन वैल्यू इज साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये अगर आप सवाल ठीक से पूछ लोगे और इसका आंसर आप लोग दे दोगे तो आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा यहीं पे। तो मैंने फिर से पूछना है, इज दिस द 100 गिवन इज अ साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल? बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब जहाँ जहाँ साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिया होता है वहाँ वहाँ आपको और एक वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है। तो कौन सा एक वेरिएबल लेंगे? y लेंगे। तो QT या फिर TS को y लेते हैं। मैंने QT को लिया, आप लोग TS को भी ले सकते हैं एज यू विश। तो TS क्या होगा? 100 माइनस y, ठीक है। अभी तो मेरे पास दोनों राइट एंगल ट्रायंगल के साइड है, तो हम लोग अपना 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 प्रोसेस शुरू करते हैं। तो मेरा प्रोसेस कहाँ से होगा? ट्रायंगल PQT से। क्या होगा? tan ऑफ 60 इज इक्वल टू x अपॉन वाई। इक्वेशन नंबर 1 हो सकता है, लेकिन tan 60 की वैल्यू मुझे पता है √3, तो y√3 इज इक्वल टू x। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 के लिए मैं क्या करूँगा? ट्रायंगल PRST को लेता हूँ। तो क्या होगा? tan ऑफ 30 इज इक्वल टू x अपॉन 100 माइनस वाई। ये तो मैंने करना ही था। 1/√3 इज इक्वल टू x अपॉन 100 माइनस वाई। तो 100 माइनस वाई अपॉन √3 इज इक्वल टू x इज नथिंग बट माई सेकेंड इक्वेशन।
आपको पता है एक्स एक्स है तो ये इक्वेट करना है, यही एक ही प्रोसेस करें। देखो लास्ट टाइम भी हमने यही प्रोसेस किया था, यही प्रोसेस बार बार करेंगे, हर बार करेंगे। ठीक है, तो y√3 समझने की कोशिश करो इज इक्वल टू 100 माइनस वाई अपॉन √3। शिफ्ट कर दो तो ये हो जाएगा 3y, नहीं, यस। तो 100 माइनस वाई इधर हो गया 4y इज इक्वल टू 100। व्हाट इज y? 25। लेकिन हाँ ऑफ कोर्स y नहीं पूछा था, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, लेकिन जैसे आप लोग y फाइंड करोगे इक्वेशन 1 को देखोगे आपको x मिल जाएगा। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25√3 एंड दैट्स द आंसर फॉर यू। देखो कितना इजी है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, इसका मतलब सब कुछ ऐसे टाइप के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएंगे। मैंने पर्पसली उसको डिलीट किया, इरेज किया, सो दैट यू ऑल्सो वुड एबल टू सॉल्व योर सेल्फ विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट एनी हेल्प। तो चलो देखते हैं कि वेदर यू कैन एबल टू सॉल्व रिमेनिंग क्वेश्चंस और नो। लास्ट वाला क्वेश्चन आई विल डिस्कस टुमारो। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन जो आपके सामने अभी पड़े हुए हैं, इन 3 क्वेश्चन को आप लोग कैसे सॉल्व करते हैं ये मुझे देखना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम लोग ये सोचेंगे कि ये जो पहला वाला क्वेश्चन है इसमें साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल दी है क्या? है, दी है। जैसे बी ई इज़ 15, वो साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बी को पकड़ के बी सी फाइंड करो एंड बी सी को पकड़ के ए बी फाइंड करो। ये है आपका हिंट। ठीक है, वंस अगेन बी ई को पकड़ के बी सी फाइंड करो एंड बी सी को पकड़ के ए बी फाइंड करो एंड दैट इज व्हाट यू विल गेट ए बी प्लस बी विल बी योर एक्स वैल्यू। सेकेंड डायग्राम में देखो साइड ऑफ अ ट्रायंगल दी हुई है क्या? है 200 इज द साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, बराबर है। अब पहले क्यू एस फाइंड करो फिर एस आर फाइंड करो, आपको क्यू आर मिल जाएगा, राइट? फैंटास्टिक। इन लास्ट थर्ड क्वेश्चन आर वी गिवन साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल? नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो कोई भी एक वेरिएबल को, जैसे ओ एन को आप लोग वाई ले सकते हो, तो एम ओ विल बी 100 माइनस वाई एंड अकॉर्डिंगली यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन फॉर एक्स। ठीक है, लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको एक्स फाइंड करना है, ये हम लोग कल करेंगे। लास्ट के 2 क्वेश्चन हम लोग कल कर सकते हैं इफ़ यू वांट। ठीक है, हम लोग सारे चारों के चारों क्वेश्चन हम लोग कल डिस्कस करेंगे। बट बिफोर आई डिस्कस आई वुड लाइक टू सी यू ऑल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। तो रेडी? तो मैं क्या बोलता हूँ, देखो आपके स्कूल में भी ये टॉपिक शुरू हो चुका है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो ये तो आना तो पड़ेगा ही, आपको आना चाहिए। तो मैं क्या बोलता हूँ, ये 4 क्वेश्चन आप लोग इफ़ पॉसिबल सेंड कर सकते हो तो सेंड करो, या फिर आंसर कमेंट करो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू टुमारो।